Hello, good morning, my dear students. Welcome to the e-class of accounts. We are continuing with part 2, chapter 1. Today our topic is forfeiture of shares. What do we mean by this concept forfeiture? You must know about it first. It means cancelling the shares of whose shareholders have not paid amount on any call. See, company takes amount in installment. If investor is not able to pay any amount on time, company does some formalities. वापस से उनको रिक्वेस्ट करती है कि इस डेट तक पे कर दो. Like that, company goes for formalities, ask them to pay the amount which was not paid by them and was recorded as call in arrears. But if shareholder is not able to pay after repeated calls or repeated information from the shareholder, then company has got right to cancel the shares, such shares of whose call is in arrears. Okay, once again, forfeiture means cancelling of shares. Which shares? Of whose call is already in arrears. Let us see how the accounting effect of it will come. Okay, accounting effect कैसे आता है शेयर forfeiture के केस में? If such shares are issued at par, अगर ये shares par पे, par means 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में और या 100 रुपीज का शेयर 100 में. So that is share is issued at par. In that case, journal entry cancel करना है. When we issue, capital is credited. Now keep this in very clearly in mind. We are cancelling. At this stage, capital will be debited to share forfeiture to call in arrears. Please see that one thing very clearly. Forfeiture will have the amount already received. ये क्या reflect करेगा? This will reflect the amount which has been already received. Forfeiture amount received, जो भी पार्ट पेमेंट मिला है. कॉल इन एरिया शोज अमाउंट नॉट रिसीव्ड. आई मीन टू से एंट्री क्या होगी? कैपिटल कैंसिल करनी है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरिया, जो भी स्टेज है. सपोज अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसका अमाउंट नहीं मिला है टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट. हियर कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज डेबिटेड. जितना आपने मंगाया होता है अब तक, कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू, ओके, इज डेबिटेड टू अमाउंट रिसीव्ड टू अमाउंट नॉट रिसीव्ड. Please see that the amount which is received up to now on this such shares, okay, is transferred to a special account known as share forfeiture account. It is a sort of again a capital profit and it is to be used for reissue of share. जो भी reissue के टाइम लॉस आता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है. After reissue, after complete reissue of shares, yay for the shares, then if any amount is left in this account, share forfeiture account, as it is a capital profit, it is transferred to capital reserve. इस concept को भी हम समझेंगे. Let us once again go to it. If it is issued at a par, share capital account debit to share forfeiture account to call in arrears account, or simply to amount received to amount not received. Okay, now if such shares are issued at a premium, no problem. Please, only one thing you have to keep in mind very clearly. आपको एक चीज को ध्यान देना है. If premium amount is received, प्रीमियम पे इशू किए और पैसा पूरा मिल गया है प्रीमियम का, then treat it as it was issued at a par. Treat कैसे करना है कि जैसे पार वाला है ऐसे. प्रीमियम का पैसा मिल गया है, प्रीमियम के अकाउंट में चला गया, forget about it. It will be treated as if share was issued at a par. Okay, क्या होगा उसके केस में एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन arrears to amount received to amount not received. Simply treated as if it was received on par because premium मिल गया
और वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया, सो उसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. बट if it is issued at a premium and if such premium amount is not received, then जैसे कैपिटल कैंसिल करते हैं, प्रीमियम ऑल्सो विल बी कैंसिल बाय डेबिटिंग. नॉर्मली प्रीमियम इज अवर कैपिटल क्रेडिटेड, बट इसको कैंसिल करना है क्योंकि मिला नहीं है, तो यहां पे इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, to call an arrear, to amount received, to amount not received. This is only to be thought. प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको भी कैंसिल करेंगे, उसको डेबिट किया जाएगा. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड विल बी ओनली अप टू द लेवल इट इज नॉट रिसीव्ड. प्लीज मेक इट अ पॉइंट, ओनली अप टू द लेवल. सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो विल बी डेबिटेड अप टू द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑफ प्रीमियम. ओके. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू. अभी तक कंपनी ने जितनी कॉल की है उतनी फेस वैल्यू, कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू. ओके. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव्ड. ओके. लेट अस चेक वन मोर कंसेप्ट आफ्टर दिस. वी कैन नॉट लीव इट हियर. जो ये शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए, शेयर हैज अ कंप्लीट राइट to reissue these forfeited shares. इन forfeited shares को कंपनी मार्केट में रीलॉन्च करती है, अपने पास रखने का तो कोई मतलब है नहीं. So company has the right to reissue those shares which are cancelled by the company for non-payment of the call, means which are forfeited by the company. Company will reissue or relaunch in the market. When company relaunches, what will be the accounting treatment? So simple it is. If it was at par, it reissues at par, तो जितने पैसे रीइश्यू के टाइम मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सच लॉस फर्स्ट विल बी कवर्ड अगेंस्ट शेयर फॉरफीचर विच वॉज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. सो लॉस ऑन रीइश्यू फर्स्ट इज कवर्ड अगेंस्ट शेयर फॉरफीचर अकाउंट. इफ शेयर फॉरफीचर इज शॉर्ट, then it is shown as the capital loss by showing as a discount on issue or reissue of share. Till that time पहले इसी में से कवर करने की कोशिश है. सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, सपोज 10 रुपए का शेयर है, इन्वेस्टर को 8 रुपए में देते हैं, 2 रुपए का है तो, और हमको कैंसिलेशन के टाइम पे फॉरफीचर में 5 रुपए मिले हैं. सो अमाउंट रिसीव विल बी डेबिटेड टू बैंक. नॉट रिसीव जो लॉस है 2 रुपीज, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू इसकी सपोज 10 है तो, सो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज. फॉरफीचर नुकसान हुआ अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नाउ आप बोलोगे मिले तो 5 थे लेकिन लॉस सिर्फ 2 का हुआ. वही मैं बात कर रही हूं, री इश्यू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है, after complete reissue of share, if any amount is left out, see that this amount will be closed and transferred to capital reserve because it is a capital profit. So entry will be share forfeiture account debit to CR, share forfeiture account debit to capital reserve. In this case 5 रुपए मिले थे, 2 रुपए रीइश्यू में लॉस हो गए, तो हम 3 रुपए फॉरफीचर में ट्रांसफर, फॉरफीचर के हम CR में ट्रांसफर कर देंगे. एट द एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. दिस इज द लास्ट एंट्री. पहले फॉरफीचर की पास करेंगे, फिर एनी री इश्यू की लॉस करेंगे, एंड आफ्टर री इश्यू दिस CR ट्रांसफर एंट्री. प्लीज चेक फॉर इफ सच. समटाइम्स क्या होता है, कंपनीज पोजीशन इज वेरी सॉलिड एंड दे आर री इशूइंग एट अ प्रीमियम. ओके, इशू में भी सपोज प्रीमियम पर री इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं. इन दैट केस कोई लॉस तो नहीं हो रहा है. एंट्री पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सिंपली अगेन आई एम शोइंग यू दिस एंट्री. क्या किया हमने, पैसा री इशूड एट प्रीमियम की बात हो रही है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सपोज 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में कंपनी लॉन्च कर रही है तो मिलेंगे 11 रुपए.
10 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम. इन दिस वे री इश्यू ऑल्सो कैन बी डन एट द प्रीमियम. लॉस होगा तो फॉरफीचर से लेंगे और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. सो दिस वे this concept we have done reissue of forfeited share and transfer of amount to CR of excess share forfeiture. So let us take practical to understand this complete concept. Okay, we are doing textbook question number 12. Have a look on this question number 12 of your textbook. So simple it is here. If here write journal entry. Short questions to explain full concepts are given. Write journal entries in the books of company for forfeiture and reissue of forfeited shares. सिर्फ forfeiture और reissue की एंट्री को और उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है और अंडरस्टैंड करना है. Very important type of questions. These are help you to do the main or lead question also. If we don't understand this concept, we are not able to do even the lead questions. Let us see what is given here. Okay, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. What is happening? Company has forfeited 800 equity shares of 10 each. Condition 1. Here, if I go this way, line 1 procedure we just check out one by one line, so that is easy. 800 equity shares of 10 each of shareholder for non payment. देखो 10 रुपए का शेयर 800 शेयर्स हैं, बट क्या नहीं पे किया इन्वेस्टर ने. अलॉटमेंट मनी इज नॉट पेड ऑफ ₹4 और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4, इवन share call of ₹3. This is also not paid by investor. This is also not paid by investor. This shareholder has paid ₹3 of application. ₹3 पे कर दिए हैं, वो forfeiture में जाएंगे. Forfeited shares were reissued at 8. ये भी क्लियर कर दिया इन्होंने कि रीइश्यू हम कितने पे कर रहे हैं, ₹8. बस इसी की एंट्री पास करनी है. Let us check this. How to present it when we want to solve the फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है. आपको कुछ नहीं बोला है तो भी आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, दिस ऑल यू नो. डेबिट, क्रेडिट, LF का भी कॉलम बनाएंगे. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड या इन द लिमिटेड इन सो एंड सो कंपनी, ऐसा भी लिख सकते हैं. फर्स्ट एंट्री करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 800 equity shares. Company has launched how many shares? See, we have already checked question. 800 equity share and each share's face value is how much? 10. Don't leave this point here. On non-payment, क्या नहीं पे किया है? Of allotment of ₹4. I'm taking support of question and call of ₹3. The share is being forfeited. And they have given you that investor has already given us what? Application of ₹3. You must always check what is the status given in the question. तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपीज की पूरी इंफॉर्मेशन, जिसमें से 7 रुपीज हमको नहीं मिले हैं और 3 रुपीज ही हमको मिले हैं. नॉट ओनली दिस मच, ऑल दीज शेयर्स, पूरे 800 शेयर्स आर रीइश्यूड at ₹8 per share. 8 रुपीज पे हम ये शेयर्स क्या हो रहे हैं, रीइश्यू. ओके, रीइश्यू हो रहे हैं 8 रुपीज पे. नाउ वी कैन गो फॉर दिस. कंडीशन 1 इज दिस. फर्स्ट एंट्री वी आर डूइंग, पहली एंट्री होगी नेचुरली फॉरफीट करेंगे. फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफीटिंग ऑफ शेयर्स. सो शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव अकाउंट, डेबिट कैंसिल करना है तो कैपिटल को क्या करना है, डेबिट टू अमाउंट रिसीव टू अमाउंट नॉट रिसीव. सो सिंपल. जो मिला है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो नहीं मिला है उनकी कॉल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू अमाउंट रिसीव नॉट रिसीव.
8 रुपीज की पूरी इंफॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल में पूरा कॉल्ड अप वैल्यू जाएगा, दिस कम्स टू 8,000 कॉल्ड अप वैल्यू। फोर फीचर में अमाउंट रिसीव दैट इज 800 इंटू 3 मिल गए हैं, दैट कम्स टू रुपीज 2,400 फोर फीचर में। अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं मिले हैं तो 800 इंटू 4 नॉट रिसीव, सो दैट विल बी 3,200 एंड कॉल में हमको 800 इंटू 3 दैट कम्स टू अगेन 2,400। टोटल करके वेरीफाई करके देखना, इट इज डन। सो दिस वे हियर being shares forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट, कंपनी ने क्या किए, ये शेयर्स फोरफिटेड। एक बार आपका चार्ट रेडी होता है ना, शो करना बहुत इजी है। सो शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं शेयर्स को। तो हियर कैपिटल इज डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर टू अमाउंट रिसीव्ड, फोरफीचर अमाउंट रिसीव्ड टू अमाउंट नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड वो फोरफीचर में चला जाएगा, नॉट रिसीव्ड है वो अपने अपने कॉल के अगेंस्ट शो होगा। नाउ आफ्टर फॉरफिटिंग व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इन सबको हमने 8 रुपीज पे रीलॉन्च कर दिया या री इशू। तो लेट अस गो फॉर एंट्री फॉर री इशू। एंट्री कैसे होगी, री इशू कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट and we are reissuing at 8, so there is a loss of ₹2 that will be recovered from forfeiture account. Share forfeiture account debit to share capital account. Okay, so let us see here what happens. 800 पे 8 रुपीज पे रीलॉन्च कर रहे हैं। So forfeiture बैंक अकाउंट, पैसे आए कितने बैंक को, 6,400। 2 रुपीज का लॉस है, 800 इंटू 2 1600 वी विल टेक फ्रॉम फोरफीचर। सी हमको यहाँ पे 2,400 का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि ये जो पैसे मिल गए हैं वो वापस नहीं किए जाते हैं। दिस अमाउंट इज टू बी यूज्ड व्हाइल टू कवर द लॉस ड्यूरिंग री इशू। री इशू के टाइम में जो लॉस हो उसको कवर करने के लिए। तो अभी हमने कितने यूज किए इसमें से, 2 rupees per share, that is 1600 is used, and this is always called up paid up value. यहाँ पे 10 के 10 रुपए की called up value हो गई है 8, so you can see your total should be or must be same. Now final entry, जो भी excess amount है, narration being share reissued, simple में अगर डालें तो being shares reissued, you need to close all entries also after completing. ये सारी प्रोसीजर्स आपको पता है। लेट मी गो फॉर द फाइनल एंट्री हियर, दैट इज एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो हियर एक्सेस कितना है आप मेंशन कर सकते हैं। 2,400 का प्रॉफिट हुआ, सामने 1,600 का लॉस हुआ, सो रिमेनिंग अमाउंट इज ₹800 ट्रांसफर टू CR। लास्ट एंट्री वही होगी हमारा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट क्लोज कर रहे हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फोरफीचर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड, क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो कितना अमाउंट आएगा इसमें, 800 रुपीज डेबिट, 800 रुपीज क्रेडिट। एक फॉर्मेलिटी और टोटल की करनी होती है, प्लीज आप टोटल सामने लिख के सिंगल लाइन टू डू टोटल, डबल लाइन टू ब्लॉक इट, दैट मच यू विल डू। सो दिस वॉज वेरी सिंपल बेसिक एंट्री ऑफ फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। लेट अस गो फॉर कंडीशन 2। ओके, कंडीशन 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ टेक्स्ट बुक। हाँ, क्वेश्चन 12 ऑफ टेक्स्ट बुक, सेकेंड कंडीशन, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ XYZ। अभी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और कंडीशन के साथ उसको लिखते भी जाएंगे। लेट अस चेक क्वेश्चन नाइसली हियर। हाउ मेनी शेयर्स RK Company Limited is forfeited? Here if you check, 600 shares of 10 each of Sunil. Sunil has paid application and allotment of ₹5
but could not pay 3 rupees per share and 2 rupees per share of first and second call respectively. Out of forfeited shares, 400 shares are reissued at 6 per share to Mittal. Okay, now very good to keep in mind. पहले 600 शेयर कंपनी इज लॉन्चिंग और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10. पार वाले ही हैं ये सारे. ओके, नाउ इन्वेस्टर इज एबल टू पे एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट ऑफ ₹5 बट कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज रिस्पेक्टिव है ना, उठाना ध्यान से, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2. दिस कुड नॉट मीन्स ये नहीं पे किए हैं, कुड नॉट पे. अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन. दिस वे 10 रुपए थे, उसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 मिल गए हैं और 3 और 2 फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं. ऑन टॉप ऑफ इट कंपनी इज पार्टली री इशूइंग. 600 में से खाली 400 शेयर्स को री इश्यू कर रही है, दैट ऑल्सो एट ₹6 पर शेयर. 6 पर शेयर पे रीलॉन्च कर रही है. मीन्स 200 शेयर अभी भी कंपनी ने री इश्यू नहीं किए हैं, उसके लिए हम देखेंगे एंट्री. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहली एंट्री ऑलवेज फोरफीचर की है ना. फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर फोरफीचर. लेट अस गो फॉर इट. फोरफीचर करेंगे तो शेयर कैंसिल होता है. लेट अस गो. एंट्री नंबर 1 कैंसिल आप यूज कर सकते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके, टू अमाउंट रिसीव, टू अमाउंट नॉट रिसीव. टू equity share forfeiture account. to call in arrears account आप लिख सकते हैं, और to first and final call जैसे भी. to equity share call in arrears account. शॉर्ट में इस तरह से भी एक बार समझ गए तो लिख सकते हैं. 600 into 10 तो 6,600 और 5 मिल गए हैं, सो 3,000 मिल गए हैं. 5 रुपीज नहीं मिले हैं, 3,000 रुपीज नहीं मिले हैं. सो सिंपल इट इज. ओके, being shares forfeited. Okay, this completes our first entry. Let's go for second one. After this reissue. अभी हम reissue कितनी कर रहे हैं? खाली 400 shares. जो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. See how much it is received per share, 6 rupees. So 400 into 6. जितने रीइश्यू करें उसी के हिसाब से. अगेन आई एम राइटिंग हियर फॉर योर इंफॉर्मेशन. 4 into 6. 400 into 6 सिर्फ 2400 आर रिसीव. बट लॉस है, 6 रुपए मिले, 4 रुपए का लॉस है, वो फोरफीचर से लेंगे. शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट. कितना डे फोरफीचर से लेंगे? 400 into 4 का लॉस है, तो 4 4 16. to equity share capital account called a paid up face value in shares की 400 into 10 it comes to 4,000. being shares reissued. क्या किया हमने इसको? reissued. being shares reissued. पार्टली है, लेकिन कैसा reissue है? पार्टली. नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी? नेक्स्ट विल बी फॉर ट्रांसफर टू सीआर. बट कंप्लीट सीआर हम क्लोज नहीं कर सकते. जो पूरा कैपिटल है 600 शेयर्स थे, तो हमारे पास फोरफीचर कितना है? 3,000 रुपए का. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली. ये पूरे जो 3,000 हैं वो 600 शेयर के हैं. दिस इज फॉर 600 शेयर्स. 3,000 अमाउंट का प्रॉफिट हुआ था. आप पर शेयर कर सकते हैं जैसा कन्वीनियंट हो. और अगर 400 शेयर्स हैं तो कितना अमाउंट होगा? दैट यू सर्च आउट. इफ यू सर्च आउट यू विल गेट अमाउंट. इफ यू फाइंड आउट हियर, क्रॉस से कैसे होगा? 3,000 into 400 upon 600. This. If you keep on doing, if you do, it comes to amount कितना? Only access will be transferred here. Here 2,000 it comes to. This comes to how much rupees? 2,000. तो इसका 400 शेयर्स का इसका मतलब फोरफीचर कितना बनता है? 2,000 रुपीज. उसमें से हमने
री इशू करते टाइम कितना यूज कर दिया, री इशू करते टाइम हमने, सो फ्रॉम दिस माइनस 1600 यूज्ड 400 इज सरप्लस, ट्रांसफर टू सीआर, सीआर में ट्रांसफर कर देंगे इसको। सो ट्रांसफर की एंट्री अभी हम पास करेंगे, सिंपल सी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पार्टली, पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि जो शेयर्स इशू नहीं हुए हैं, जो शेयर इशू हुए ही नहीं है, उनका सीआर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बीइंग शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू सीआर ओनली अप टू द अमाउंट विच इज इशूड ओनली कैन बी डन। इधर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इधर कॉलम में ये सब ले लिया है, सो ये नहीं होने चाहिए और नीचे आपका ग्रैंड टोटल आना चाहिए। दिस वे इट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन 12 का 2। नाउ लेट अस गो next. So what was highlight of this question? Partly reissue was there. Okay. Now we are going for next. Let us go for 12 का question 12 का 3. Question number 12, third part. Understand its main thing. ये प्रीमियम वाला है, हाईलाइट इसका प्रीमियम ही रहेगा। सो अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को और लिखते जाएंगे साथ साथ में। शेयर होल्डर इज होल्डिंग 3000 equity shares of 10 each, has paid application money 13 per share including premium of rupees 10. So one by one total share कितने हैं उसके पास 3000 और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10। इसने इट इज इन्वेस्टर has already paid application of total कितनी, total 13 which includes 10 rupees of premium। प्रीमियम के 10 रुपीज हैं तो कैपिटल की ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, ये आपको क्लिक होना चाहिए। अपन ने मेन क्वेश्चन में भी सीखा ब्रेकअप करना, कैपिटल के 3, प्रीमियम के 10। दिस इज हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन। इफ वी मूव अहेड, अलॉटमेंट मनी ऑफ 13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10। इवन इसने अलॉटमेंट भी पे किया है पर टोटल अलॉटमेंट भी कितना है 13। And here this includes again premium of rupees 10. Allotment also includes premium of rupees 10. Okay. Further, his shares were forfeited for what then? It were forfeited for non-payment of call money of 4. He couldn't pay call money of rupees 4. That's why these shares were forfeited, and these all forfeited shares were reissued at 7 per share. This value or this information is already given in the question. Let us work it out now. आपको बहुत क्लियर है, कंपनी ने 10 रुपए की कैपिटल है और प्रीमियम कितना का हो गया, नेचुरली प्रीमियम 20 का हो गया है, यहाँ पे 20 रुपीज का प्रीमियम है। दिस वे company has collected the amount. If you go for total of it this side also, ये 4 रुपए इधर आ जाएंगे। So this becomes total of rupees 30. Our chart should be very, ये reissue है, इसको अलग ही रखेंगे। This is reissue at 7. पहले ये बात समझनी है, share issued at a premium, premium amount received, प्रीमियम का पैसा मिल गया है, तो मिल गया है ना तो इसको भूल जाएंगे, मिल गया वो अपने अकाउंट में चला गया। यू विल ट्रीट एज इफ शेयर वॉज ऑफ पार। व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड यू विल फॉरगेट अबाउट प्रीमियम, ट्रीट एज इफ शेयर वॉज इश्यूड एट अ पार। ऐसे ही ट्रीट करना है। लेट अस ट्रीट इट इन दिस वे एंड फर्स्ट एंट्री फॉर फॉरफीचर लेट अस पास। फर्स्ट एंट्री कैसे पास करेंगे, शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव टू अमाउंट नॉट रिसीव, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट। If I am writing this way so that you can understand per share, I can show you here.
That means 3000 into 10 will come here. That is rupees 30,000. और हर एक शेयर पे हमको इसका मतलब 6 रुपए मिल गए हैं, 4 रुपए नहीं मिले हैं. तो फोर फीचर में 6 receive 3000 into 6. Okay, 6 3s are 18. And 4 rupees not received, call in arrears. 3000 into 4. 4 not received, that comes to 2 and 18. 6 1 is 6, 3 is 18. 4 feature में कितना आएगा? 18,000 and this will be 12,000. Amount received कितना है? 18. Not received कितना है? 12. Please see this amount. Okay. Then next entry, being shares forfeited. अब रीइश्यू करेंगे. सबके सब रीइश्यू कर रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट. Why I am using this? Because 7 रुपए तो मिले हैं, 3 रुपए नहीं मिले, लॉस है. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, 3000 इंटू 10 का कैपिटल है 30,000. हियर बैंक में से मिल रहे हैं 7 रुपीज. 3000 इंटू 7 21,000. नहीं मिल रहे हैं, 4 फीचर से लेंगे, बाकी के 3 रुपए, दैट इज रुपीज 9,000. नेक्स्ट लास्ट एंट्री सीआर में ट्रांसफर करें. टोटल 4 फीचर 18 में से 9 यूज्ड, सो 9 अनयूज्ड, बाकी का ट्रांसफर हो जाएगा. शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर टू CR. Okay, surplus amount transferred to CR. So in this way, and then finally grand total karke close. Okay, so this way we have understood the concept. CR transfer ki entry also you can observe. This way grand total comes to 96200. 96200, right? Dear students, just for an idea, we have done question number 12, which was helping you to understand the topic of share forfeiture in case of simple, that is par. Okay, now what will be your homework for the day? Please all of you will note down. Similar question है, पहले भूल से मैंने दे दिया था, प्रैक्टिस कर लिया है आपने तो अच्छा है, नहीं तो करेंगे आप इसको. Illustration 9 is similar to this on page number 25. This will be your homework. Page 25, illustration. Okay, page 25, illustration 9. Thank you, all of you. We will do next question or forfeiture in next session. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye.